Hi guys, this is Faryal Mahmood. I am on Something Hot. I don't really do much interviews, but this is right from the heart, up front. Keep watching. Assalamu alaikum, this is Amna, you're watching Hot Talk and I have with me today Faryal Mahmood. मैंने कोई beat around the bush नहीं किया कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसलिए कि मैं इनको personally तो नहीं जानती अभी तक but professionally और social media पे जो इनका persona है I've always found that very intriguing. Faryal is somebody who comes across as a very disciplined, very determined, very opinionated and very unapologetically opinionated person which is not easy to find these days. हमारे artists जो हैं usually घबराते हैं बातें करने से सच बोलने से. So she comes across as an artist who's very true to herself. She's never held back. Incidentally, that's also the character she's playing these days in Rakib Se, Insha. Also somebody who's opinionated, who's very determined, who has a personality, a persona, is not afraid to say what she wants to say. How much of that similarity are we going to find today? There's a lot of similarity, and the first time I read the script, that was an experience within itself. और फिर मैंने इंशा को पढ़ा, and Insha was just so me. And then काशिफ भाई spoke to me. He's like, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तुम होना है, बस तुम्हें तुम behave करना है और कुछ भी नहीं. I was like, I can do that. मगर ये आसान था मुश्किल था. मुश्किल था ये बहुत मुश्किल क्योंकि as a person, like as an individual, as Faryal, I have a lot of body language. I am very also loud at some times. I laugh out very very loud and वो अपने आप को collect करना और वो एक obviously मैं अपने आप को उतना ज़्यादा headstrong और उतना ज़्यादा संभला हुआ फील नहीं करती जितनी इंशा थी बिकॉज शी हैज एवरीथिंग फिगर्ड यू नो. वो बल्ब भी ठीक कर रही है, वो बिल्स भी दे रही है, वो मुझे मैकेनिक करवाती हूँ, मैं खुद करवाती हूँ, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी का कोई मसला आता है मैं पहले रोती हूँ फिर करती हूँ. I'm like, oh my god, not again, you know. So I'm that kind of a person, but eventually I still have to do it, get it done myself, you know. So she was so calm and collected and you know like she knows what she wants and I loved it. I was like ये मुझे पहली दफ़ा एक ऐसा स्क्रिप्ट मिल गया है जिसमें एक लड़की जिसकी अपनी एक ज़िंदगी है जो पढ़ के डॉक्टर बन चुकी है, घर भी संभाल रही है, अम्मी अब्बू उनका एक अजीब सा रिलेशनशिप, घर में मेहमान आ गए हैं, उनका लिहाज भी कर रही है, उसके करने का दिल नहीं चाह रहा है लेकिन लिहाज कर रही है क्योंकि वो घर के मेहमान हैं और क्योंकि वो इतनी बड़ी एक हिस्ट्री है तो वो शी इज हैंडलिंग ऑल ऑफ दैट ड्रामा एंड शी इज ऑल्सो हैंडलिंग अब्दुल की शर्ट, अब्दुल का क्या नाम है बिल्स, उसका अपार्टमेंट, उसका ये उसके कॉम्प्लेक्सेस और इनसिक्योरिटीज. एग्जैक्टली. ऑल्सो थेरेपी भी हो रही है साथ अब्दुल की. मतलब we as women I think love to take on so much and we still don't get tired and it's amazing. It's amazing. I see women do so much in one time and it's amazing. So to portray a girl that is doing all of this and still is not a negative girl who does this and that, you know, इसको तो मैं बताऊंगी, उसको तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं है. जो है वो बहुत मुंह पे है. If she's sarcastic, she has a really good dark sense of humor. I love it. जो इंशा का humor है. और आई थिंक वो सारे ही कैरेक्टर्स में बीगुल ने अपना अपना एक ह्यूमर दिया हुआ है जो कि आई लव. बट इंशा का बिल्कुल नीचे वाला एक डार्क सा ह्यूमर, बिल्कुल अंडरटोन, दैट वाज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम माय बॉडी लैंग्वेज. ऑन द सेट एवरीवन वुड मेक फन ऑफ मी कि तुम टांगे खोल के क्यों चलती हो. मैं वैसे नहीं चलती हूँ, मैं इंशा की तरह चल रही थी. They didn't understand that.
eventually now I think even the team I was working with understands what I was doing, because there were a few things that obviously Kashif bhai and me sat on and decided over and over and over again right before every scene. Character development. Exactly. But there were few things that was just within me, and I was like, let them say whatever they're saying. I know कि इंशा कैसे चलती है, इंशा ऐसे चलेगी, इंशा लड़कियों की तरह यूं यूं नहीं चलेगी, उसको तो कोई बाहर पे छेड़ना शुरू कर देंगे लोग, you know. She walks like a man, and everyone kept teaching me, no, लड़कियों की तरह चलो, and I'm like, I know how to do that, but like, you know, a lot of things I kept within myself, and बीच-बीच में मुझे बहुत डर भी लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो एक्टिंग कर ही नहीं रही हूँ. ये सब तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, मतलब ये तो लेजेंड्स हैं, मतलब, you know, you're gonna see there are intense scenes with the manajas of mine, and to keep that tone and still deliver everything and still be able to match or somewhat match हल्का पुल्का what he was doing, वो अपने आप बड़ी बात है फरियाल, बड़ी बात है. नुमान एजाज जैसे लेजेंडरी एक्टर, और बहुत लोग लेजेंड्स बन जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में, मगर वो ट्रूली उन्होंने जितने मुश्किल रोल किए हैं, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. उनके साथ परफॉर्म करना, उनके साथ सिर्फ बैठना आपकी हवा निकल जाती है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल हवा निकल जाती है. और मैं तो पहले दिन सेट पे गई हूँ, and he was in Kashif bhai's office, and I went to him. I was like, sir, I am nothing. Please, sorry. And I just in advance. Yeah, पहले से उस गलती का जो मैं करने वाली हूँ. Everything. और हर सीन में तो मैं उनसे बदतमीजी कर रही हूँ. हर सीन में मुझे उनको आंखों में आंखें डाल के एक बात बोलनी पड़ती है कि आप, अरे मकसूद साहब, अरे, you know. और वो इतनी कामली मुझे इतनी डिलीवर करनी पड़ती थी कि शुरू के कुछ सीन्स में मैं तो I used to, और इतने लंबे सीन्स I did not, after the 3rd grade मैंने उर्दू नहीं पढ़ी. मेरे लिए बीगुल का स्क्रिप्ट करना was another level. अच्छा फरियाल, 6-7 साल हो गए, उसमें स्क्रिप्ट पढ़ना तो आ गया, शुक्र है, तभी तो मैं बीगुल तक मैंने कहा हाँ ये होगा, ये हो जाएगा. थैंक गॉड. बीगुल काशिफ निसार, काशिफ भाई, और काशिफ भाई ने जिस तरह मुझसे करवाए हैं, मुझे शुरू के पोएटिक जिसमें मैं पोएट्री बोल रही होती हूँ, एक वो कहानी सकीना और मकसूद साहब की और हाजरा और बहुत सारा, वो काशिफ भाई, there were times that we were short on time and we had to do the scene because we were losing light and everything, outdoor के scenes and everything. He would sit with me and he would first, पहले आसान करते थे पूरा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लेते थे हम, उसको पहले वो आसान करते थे और मुझे दिखाते नहीं थे, वो बुलवाते थे मुझसे, अब ये बोलो, अब ये बोलो, अब पूरा बोल के दिखाओ. मैं पूरा बोलती थी और इस तरह फिर मैं बोल जाती थी और मुझे याद हो जाता था. और and I would deliver, and the thing is even I wasn't sure कि मैं ये उर्दू इस तरह कैरी कर पाऊंगी या नहीं, even though I have done खलील साहब के स्क्रिप्ट्स. वो एक बहुत अलग टॉपिक है, वो वहाँ मैं चली गई एकदम से, फिर मैं एकदम वापस आ गई. लेकिन ये भी बहुत मुश्किल था क्योंकि इधर मेरे साथ बहुत बड़े लोग थे. बिल्कुल. और काशिफ भाई का स्क्रिप्ट, मतलब काशिफ निसार का स्क्रिप्ट, सॉरी डायरेक्शन, एंड I was so scared the entire time. मैं अब scenes अपने देखती हूँ and I'm like, you can't really tell that I'm very afraid inside. No, but the thing is, Farial, बेशक you might be afraid, but you've come across as very brave. और मैं आपके previous interviews देख रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि जो relationship मकसूद साहब और हाजरा की है या सकीना के साथ है, या जो एक dysfunctional family का एक माहौल दिखाया है रकीब से में, you've actually been through that. Yeah. So how much of that plays? Is it catharsis? आप जब ऐसा रोल कर रहे होते हो तो catharsis हो रही होती है, या आप are you channeling your own experiences,
या आप बिल्कुल क्लीन स्लेट पे शुरू करते हो कि नहीं मैंने एक नया किरदार पैदा करना है? It's a little bit of everything. It's really weird. I'll tell you how. When I started, I would get scripts जिसमें बहुत सारी situations मेरे साथ हो चुकी होती थी. And 15-16 की बात कर रहे हैं हम. मैं 5-6 साल पहले की. 5-6 साल पहले, हाँ. When I started, then I would just, you know, do what I did at that moment and how I felt. I would deliver that. I would tap into that memory and just open up about it. And I think that helped me face a lot of my really, really dark moments, dark times, where even मैं खुद से आप जब ऐसे ही बैठे होते हैं और आपको एकदम से एक छोटा सा flash आता है and you're like, I don't want to think about that. But when you sit with that scene that had happened to you and you let it out, it really does help you. जब भी मैं ये करती हूँ उसके काफ़ी देर तक मुझसे रुका नहीं जाता. If I'm crying, I can't stop crying for like an hour, hour and a half, and I need to be like just sent away to like a room or something. Because you've said on record that you had a miserable childhood. I mean, yes, it's not something that miserable childhood. Miserable yes. childhood, and you've spoken about, you know, your mother marrying 3 times and being molested by your second stepfather, and your father marrying, and your relationship with your stepmother and stepfather, all of that. So that's a lot of trauma. Unfortunately, it is. It's a lot of trauma, but now I'm at a point in life where everything has changed a lot with my parents, even my stepmother, even I feel like you are expected to prove yourself even to your parents and even just to everyone that you are worth it, and then people will actually say, oh my god, we didn't know, we were, you know, just we abandoned such a talented person. So that's what happened with me right now, and my mother and my father saw my work and they saw how good I was doing and I made it on my own. They actually started respecting me and they told me, they were like, we're really proud of you. And it's really hard making it in a country where there's no family and no one around you to support you and being honest with your work. Your family is in the US. All of them. Yeah. All of them. I'm here by myself for 8 years now. And अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, हर चीज़ से डील करना, आगे बढ़ना, ये प्रोजेक्ट करना है, ये नहीं करना, इसने चेक नहीं दिया, ये नहीं हुआ, उधर वो उसने उसको हायर कर लिया क्योंकि उसका कुछ चल रहा है, मतलब you know, so many things, उसके थ्रू जाना and then still come out and see that, हाँ, this person actually knows my name, shit, you know, wow, how. So, Faryal, when you came from the US, you were overweight. You had no experience. 96 kgs. To be precise. Okay. You had no acting experience and you came here alone. You didn't have family support, although your mother is an actress. Yes. And उन्होंने acting की भी है, लेकिन हाँ. ये nepotism वाला तो कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं है. और एक लड़की आती है अकेले पाकिस्तान में और उसका कोई contact नहीं है. And you're saying that you made it on your own. How difficult was that? लोग कहते हैं कि जी कोई कुछ नहीं, बड़ा आसान है. सब दरवाजे खुले हैं टैलेंट के लिए और हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है and people are supportive and producers are supportive and tell me how. I love your dark humor. Oh my god. Okay. So in all my interviews I try to set an example and then also give hope. In my last interview with Samina Appa, I told about my childhood because मैंने अपनी फैमिली को भी ये बैठ के समझाया कि इसलिए मैंने बोला था ताकि मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस वक्त मेरी सिचुएशन में होंगी और उनको आगे लाइट नहीं दिख रही होगी, उनको लग रहा होगा कि ज़िंदगी ख़त्म है और चलो किसी से शादी कर लो और उनके घर चले जाओ और वहाँ जाके स्लेव बन जाओ या यू नो इस तरह की चॉइसेस लड़कियाँ मेक करती हैं. So that was my point and you guys need to understand that this was my point. I'm not trying to कि मैं आप लोगों को हाँ exactly no, I love my parents and
I am who I am because of them, and that is what it is. Yeah. दूसरा point मैं भूल गई. Where were we getting to? Making it in this industry alone. Still, they were like 2-3 points. Can you ask your question again? I'm sorry. Train of thought चली गई है. हाँ बिल्कुल. Train of thought इतना चली गई है. अच्छा था सारा और वो निकल रहा था ऐसा बिल्कुल होता है. चला It गया. just shows that you've got a lot going on in your head. Yes. It just shows that you've got a lot going on in your head. No, I was asking you that you know you the baggage you came with. Yeah. And the baggage you arrived with. Yeah. The industry is not an easy place for people. Although सब लड़कियाँ आके इंटरव्यूज में यही कहती हैं कि बहुत आसान है, बहुत सपोर्टिव थे. झूठ बोलती हैं. झूठ बोलती हैं. ये आप टीजर में लगाइएगा बिल्कुल. झूठ बोलती हैं. Headline. झूठ बोलती हैं. You were saying you want to bring something positive to the interview. Yes. Right? Okay. Thank you. Yes. Okay. So इस इंटरव्यू में yes, I will tell you that it is very difficult to remain in the industry and do well and to succeed and to move forward. Very, very difficult if you're being honest. If you know the tactics and tricks and इसको यहाँ से काट लो, उसको वहाँ से काट लो, इसके बारे में ये बात फैला दो, उसके बारे में वो बात फैला दो, या यहाँ पार्टी कर लो, वहाँ पार्टी कर लो. Let's sit and like talk to that person, go on a dinner, maybe talk to the producer. Yeah, then it's very easy. Rub him up the right way. Yeah, very easy. कौन नहीं मुझे ये जो 8 साल का प्रोसेस था इसमें कितनी दफ़ा मतलब obviously they know that I'm educated and I will, if they are very direct with me, I will be very direct with them. Yeah. और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है. So I would get very like indirect kind of messages कि एक साल हमें दे दें आप, बस आप एक साल मुझे दे दें. फिर मैंने कहा सर साल 2 साल ले लें आप, मुझे साइन करें, ठीक है करते हैं काम करते हैं. इसका क्या मतलब है एक साल मुझे दे दें आप? What does that mean? ड्राइव पे चलते हैं. क्यों? क्या बात करेंगे? ऑफिस में क्यों नहीं हो सकती बात? What is it? और अलग अलग किस्म की ठरक है ना. मतलब जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी ठरक बुरी होती जाएगी. और वो ऊपर वाली जो ठरक है वो ये होती है कि What's wrong with you? What's wrong with your attitude? No one wants to work with you. Your behavior. Why isn't anyone willing to work with you? My behavior? I'm always on time. I never have any issues with any actor unless they are very disrespectful. I try to mind my own business. I am very, very professional. And I'm a very good actor. I will deliver what I promise you. Absolutely. Thank you. I will deliver what I promise you. आपको कहाँ से मैं डिफ़िकल्ट लग रही हूँ? डिफ़िकल्ट मैं आपको अभी बताती हूँ. डिफ़िकल्ट में ये है कि मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ आपको. मैं आपके फिजूल लेम जोक्स पे हंसूंगी नहीं. मैं आपको बता दूंगी कि बहुत लेम जोक था, आइंदा मत कीजिएगा, मैं जाके शॉट के लिए तैयार हो रही हूँ. When you say lame jokes, do you mean vulgar jokes? Yeah. Because lame jokes पे बंदा हंस भी लेता है कभी किसी को खुश करने के लिए, तो it's okay, but Me too ना कर देना. मतलब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैं कोविड में बैठ के बोर हो रही थी. And I made a video of producers and makeup artists and what's it like to be an actor on a set. It was like a IGTV video on my Instagram and I made it and I laughed. खुद ही खुश हो गई मैं बना के. But yeah, like very inappropriate jokes. जहाँ मुझे बोलना पड़ता है कि मेरे ख्याल से हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स हैं, सारे नहीं, कुछ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत बच्चों की तरह रखते हैं और उनके साथ मैं उन्हीं के प्लेस में ज़्यादातर दिखाई देती हूँ. let's name the good ones. The good ones, I feel very secure working with Seven Sky, Abdullah Saab, Asad Saab, they're very good people. कभी कोई इस तरह की फजूल बात नहीं हुई. हमारे बीच में बहुत इख्तलाफात हुए हैं, which is fine. हाँ, which is fine, and they get over it, I get over it, and we have a professional relationship. Then going into 2 mainstream channels, ठीक है, Jio तो I can do whenever I want to. They're like, I'm like,
नहीं मुझे स्क्रिप्ट नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं करना, राइट? आई एम ऑल्सो वेरी पिकी विद माई स्क्रिप्ट. आई जस्ट डोंट डू इट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, के पैसे आ रहे हैं चलो करते हैं, बिजी होना है, मुझे नहीं अच्छा लगता. दूसरे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, एक जगह वही वो एक पूरी एक लाइन आती है ठरक की, सबसे ऊपर वाला बैठ के कहता है कि आपको स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है. लुक एट मी. Do I look like I need a stylist? No, absolutely not. Thank you so Thank much. God you don't have a stylist. Thank you. I don't have a manager. I don't have a stylist. I do everything on my own. But why do they want you to have a stylist? Maybe they feel that... No, when I was they want to losing help you. weight, Okay. so at like 2:30 at night, 3 o'clock at night, after a premiere where I showed up, and he saw me and he texted me on Facebook saying, you know, you've got potential, but I think you need a stylist. I was like, sir, right now I'm going through a process. I'm losing weight. So I'm trying different things. You know, I'm trying on different things कि क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि एक नई बॉडी है, मुझे नहीं संभालना आ रहा था. मतलब, you know, it's a पूरा process. Oh, absolutely. So Absolutely. he's like, हाँ. Then the same individual calls me all the way to his office, which is like to another corner of dunya. And then he tells me this, you know, why does no one want to work with you? Why do you have behavioral issues? I keep giving your name and they keep rejecting. नहीं के बहुत So it's मसले हैं. gaslighting, right? It's trying to tell you that you're not worth it, but I will make you worth it. And you know what the sad part is? For about 6 years, I believed You them. believed it, yeah. क्या है मेरे अंदर यार, क्या है मेरे अंदर? वेट लूज कर लेती हूँ, हाँ वेट लूज, साइज 0 हो जाती हूँ, साइज 0, बहुत पतली हो गई, अच्छी नहीं लग रही, क्या कर लिया यार, छिपकली लग रही हो, क्या हो गया यार, अच्छा ठीक है वेट गेन कर लेती हूँ, अच्छा ठीक है मुझे. नाउ आई एम जस्ट लाइक, I don't want it. I don't want anything you give me. I will do whatever I like. And यहाँ no one knows लिहाज, no one knows, you know, तमीज़, इज़्ज़त, प्यार से deliver करना. एक professional language होती है. When you work outside this country, there are certain terms. I've also worked as a manager in a place before. So they tell you how to speak to people under you. Of course. There were people who were 60 years old under me, and of course I was 18. I was like, you need to do this, you know. So I had to address them in a certain way, so they also don't get offended by course, it. of course. And it's nice, so you know, Yeah. it happens. The job gets done. Yeah. कोई professionalism, कोई मतलब मैं अब मैं सोचती हूँ बैठ के कि ये लोग कब से चला रहे हैं. मम्मा यहाँ काम करती थी, कितने लोग यहाँ, कितना वक्त, रूही बानो, माय खाला यूज्ड टू वर्क. What happened? Why haven't they grown as individuals? What? ना हमारे काम में कोई डिफरेंस आया है, ना हमारे एटीट्यूड में, मेंटल लेवल में कोई ग्रोथ, कोई. Do you feel फरियाद watershed moment की ज़रूरत है? Because बहुत लड़कियों ने ऑफ रिकॉर्ड बहुत बातें की हैं कि हरासमेंट भी है, सेक्सुअल हरासमेंट भी है, कास्टिंग काउच भी है, अनकंफर्टेबल बना दिया जाता है पूरे एटमॉस्फेयर को सेट पे. Men do tend to get touchy-feely and then of course laugh it off as it's a joke. But they're afraid to talk about it. या बिकॉज ये होता है काम कि नहीं अच्छा होगा दोबारा ना, काम एक नहीं दफा मिलेगा, काम नहीं बैन मिलेगा. हो तो जाएंगे, मुझे ये कुछ पूछना बोल कि दिया. आप भी तो अकेले रहते हो. You also हाँ. finance your own lifestyle. I'm assuming Yeah. you don't have a sugar daddy. नो आई विश ये क्या फरियाद है महमूद wishes that she या has a sugar मैन, क्यों नहीं, अगर सबको मिल सकता है तो मेरे अंदर क्या मसला है यार. आप- मैं अट्रैक्ट नहीं करती, आप cooperate नहीं sugar करती daddies. ना? आप cooperate नहीं करती. कोऑपरेट नहीं करती मैं. एग्जैक्टली आप अगर आई cooperate हैव करें, बिहेवियरल इश्यूज. आप कोऑपरेट नहीं करती, आप एंटरटेन नहीं करती उनको, इसलिए वरना Entertain. आपको वरना शुगर डैडी मिल जाता. बिल्कुल. नो मगर आई ये कब बदलेगा? बिकॉज क्या चीजें सेट पे बदलने की जरूरत है कि लड़कियों को ज्यादा तहफ्फुज मिले विदाउट देयर हैविंग टू से इट और लूज वर्क. बिकॉज सब नहीं इतने कॉन्फिडेंट होते. Yeah. I will also say one thing. It's not just the men. I have seen women also be all over the men.
on sets, in parties तो obviously, but you know, But does that qualify as harassment? Because most no, men. no, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर you're throwing yourself on a person, then he's a guy. What do you expect? He's a, you know, मतलब बहुत easy हो गया है. The thing is, Amna, it's very easy. Girls know that this works. You know, कि अच्छा ठीक है, मतलब from a बेचारी extra dating a line producer or just hooking up with a line producer to an actress dating a director or a producer. All kinds of levels, all kinds of actor, and like it's लड़कियां अलाउ करती हैं तो हो जाता है. मेरे साथ जब हुआ तब मैंने उसको पॉइंट आउट किया एंड आई गेव अ लुक. अगर बहुत सारे लोग होते थे तो मैं एक लुक, और वो मेरे साथ अब कोई नहीं करता. मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं करता. अब तो सबको पता है कि मैं कौन हूँ. दे नो इसके साथ नहीं काम करना. और मैं भी ये कहती हूँ नहीं काम करना यार, इट्स ओके. द अदर चैनल, नाउ वी डिस्कस दिस चैनल, द अदर चैनल. We didn't name any channel, but I will ask you after recording कि किस की बात हो रही है. मेरे दिमाग में नाम चल रहा है. नहीं मतलब नहीं हम नाम नहीं. हाँ हम बिल्कुल भी नाम नहीं लेंगे. हमारा चैनल नहीं बंद करा. हाँ. The other channel thinks they are Kingmakers. Oh my God, not God makers. They are like God and just making पता नहीं angels and stuff. पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ. इतनी बुरी stories, इतने बुरे script. पता नहीं इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सब लोग बस, पता है कि मैंने ये नोट किया इन लोगों के. मैंने अभी 2 प्लेस किए और मैंने पहला प्ले करते हुए ये नोट किया कि ये लोगों के ना एहसासात और उनके ड्रीम्स के साथ खेल रहे हैं. People who are willing to just act. It's an art. It's not just हाँ मुझे इस बैंक में काम करना है, प्लीज काम करवा दो. हाँ 9 to 5 डेस्क पे बैठ के. It's art. Yeah. And I have seen actors who are not getting paid anything. वो खुद से वहाँ स्टे करते थे, आके अपनी टिकट पे करते थे, स्टे करते थे और खुद चले जाते थे just because they wanted to be a part of a project. Yeah. That's wrong. You are using a service from someone. You are using a particular person. You are using 2 days of them. तो कितने पैसे हो जाएंगे यार. आप इतने पैसे बचा के क्या कर लेंगे यार. मेकअप आर्टिस्ट को आपने बॉटल नहीं दी एक्स्ट्रा पानी की क्योंकि 50 रुपए की एक्स्ट्रा आज कास्ट ज्यादा है इस वजह से नहीं दी. इतना ज्यादा. या मैं बहुत बहुत परेशान हो गई थी ये देख के. और वो जो पहला हमने प्रोजेक्ट किया वो बहुत बहुत बुरा बना. वो बहुत बुरा प्रोजेक्ट है. मी एंड सानिया आपा बोथ फील फॉर आवरसेल्व्स कि ये हमने क्या किया और ये हमारे साथ क्या हुआ. यू नो इट वाज जस्ट, हमें टीम वहाँ अच्छी मिल गई थी. डायरेक्टर की जो टीम थी वो करके हम लोग कर लेते थे. बट द प्रोडक्शन हाउस एंड द चैनल, दे कॉन्स्टेंटली लाई टू यू. They lie to you about the cast. Once you get there, the cast is something else. They lie to you about जो मेन लीड कैरेक्टर्स नहीं होते. इसमें तो मैंने मेन लीड ही किया था. जो दूसरे आप आप में 2 मेन लीड्स हैं एंड देन दे डोंट गिव यू द स्क्रिप्ट. दे मेक यू साइन इट और लाइक डायरेक्टर से एक दफ़ा मीटिंग हो जाए उसके बाद कहेंगे ये स्क्रिप्ट है. then you're the bad person for stepping out. Then so मैंने ये बहुत वक्त तक किया कि अच्छा आप स्टक हो गए, अच्छा आप कर लेती हूँ, अच्छा आप स्टक हो गए, अच्छा आप कर लेती हूँ. अब I walk out. अपनी खुशी से कौन से ड्रामा किए? Which ones are you like proud of? कि ये मैंने किया और बहुत I mean I'm happy. हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा करके. I'm happy. Other than Rakib se of course, and we'll come back to that. Although we can see the happiness in both of our faces. मैं आज text करूँगी बीगल को कि you have just spoiled me. I don't like any other script. I don't want to do anything else. I just want to work. I want to do what she's writing. That's it, you know. दूसरे plays, एक मैंने किया था मोहब्बत तुमसे नफरत है. उसमें मुझे बहुत मजा आया था. वो एक इतना dark character था. And she had a reason. She had reasons. She wasn't just dark because she was
Abhi, right? Yeah. She had reasons and very like I mean, we actual can say bitch on dark record, reasons. वैसे. Okay, great. She was being a bitch. So क्या नाम है, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था. उसके डायरेक्टर थे फारूक रिंद. और दादा की अभी रकीब से के बाद भी मुझे फोन आया था. इज लाइक कुछ करना है, कुछ करना है. कुछ करना है. Isn't that a good feeling? Yes, you know. That, and then I did a play with Mazhar Moin. It was called Siskiyan. उसमें एक सीन है जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, जिसमें she starts showering, she puts water on herself because she gets gang raped and she comes back. It's a very dark story. When I was reading the script, मुझे 10th episode पे ना nauseous, I started getting nauseous because I was just so into it. और मैं जब पढ़ने लगती थी मुझे उल्टी आना शुरू हो जाती थी कि वो इतना dark था. But it was such a nice play. मतलब मैंने पूरा उस तरह नहीं देखा क्योंकि वो ऑब्वियसली वो ऐसे चैनल पे चला जो वो इतना कोई देख नहीं रहा था. बट कास्ट वाज अमेजिंग. देयर वाज मी, देयर वाज मारिया वास्ती, देयर वाज नदीम अंकल नदीम बेग एंड हिना दिल वजीर. I was very proud of that play because I did that play with no makeup. No makeup, no hair. मैं आती थी सेट पे सुबह 6 बजे. मैं अपने कपड़े पहनती थी और मैं शुरू हो जाती थी एक्टिंग करना और मुझे बहुत मज़ा आया वो करते हुए. आई ऑल्सो डिड वो जो पहला मोहब्बत तुमसे नफरत है खलील साहब ने लिखा था. देन आई डिड लाल इश्क बाय खलील साहब. दैट वाज अ सीक्वल ऑफ लंडा बाजार. आमना, अगर मैं आपको स्क्रिप्ट किसी तरह पता मेरे पास हो ना हो मैं आपको भेजूँ, इफ़ यू रीड दैट स्क्रिप्ट इट्स सो ब्यूटिफुल. It's so beautiful. I was so happy and he was like, you know, you're the main lead. I was like, yes, yes, I will nail this. फिर वो इतना बुरा डायरेक्ट और इतना बुरा बना कि कुछ सीन्स में मैं बच गई क्योंकि मेरे साथ सबा आ पाती. सबा हमीद मेरी अम्मी बनी हुई थी उसमें, तो वो डायरेक्ट कर जाती थी कुछ सीन्स और वो अच्छे होते थे. बट लाइक Car crash. the quality of the drama, the quality, it was just so bad. It broke my heart. I worked so hard on it, and then working with Khalil Saab on set every day for 9 months. But writers usually aren't on set. He was also directing the play. He was also directing the play. Okay. Yeah. Oh, so that's why. Okay. Okay. He has a movie to also He was prove that. co-directing with another director, but it didn't really make a difference. मतलब जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो वो कुछ और है. मतलब इट्स लाइक अ रामलीला टाइप ऑफ फील एंड बिल्कुल संजय लीला बंसाली वाली फील है उसकी. और एकदम से वो टीवी पे आया और वो बहुत बुरा था. मुझे मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हुई. उस पर काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि हाँ आपका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, वाह 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 क्या बात है. एंड आई एम जस्ट लाइक whatever, like just whatever. I gave it my heart and soul literally. So would you call Rakib से like the turning point in your career या पहले हो चुका है या क्या? मतलब है कि इस तरह तो हमने आपको नहीं देखा पहले. इस तरह के रोल में with such a strong cast, you're one of the 4 pillars of the story, the women. जो 4 औरतों की कहानी और एक मकसूद साहब. एक मकसूद वो एक ही बहुत भारी थे. एक मकसूद साहब सब पे भारी जी. एक मकसूद साहब और क्या वो बीगल ने बिल्कुल सही कहा कि इट्स वेरी सिंपल स्टोरी अबाउट वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स. और जो इंशा का कैरेक्टर भी है, अब जो चीज़ें इंशा के बारे में हमें पता चलती हैं कि यू नो शी रियलाइजेस के माँ बाप की क्या रिलेशनशिप है. आजकल हर बंदा स्पेकुलेट कर रहा है कि ये शायद मकसूद साहब की बेटी ही नहीं है. I'm not gonna give it away. No, I don't want you to give it away. I'm not gonna give it away. Absolutely, I absolutely don't want you to give it away. देखें मतलब you know you that's the thing. पहले जब शुरू में everyone was like wait a minute, there's a flaw in Beagle's story. There's a flaw. I was like no, just wait. क्योंकि ये स्क्रिप्ट बैकवर्ड्स चल रहा है. जब हमने पढ़ा था तो वो शुरू एंड से होता है और फिर बैकवर्ड्स चलता है और फिर आपको एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाती है. और इंशा इज
your perspective, like the viewer's perspective. Yeah. Insha doesn't know anything. Yeah. So एक बहुत लंबी तवील, और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि कोई फ्लॉज नहीं है स्क्रिप्ट में. मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई फ्लॉज नहीं होंगे. हो ही नहीं सकता. मैं नहीं एक्सपेक्ट करती बिगुल से इतना एंड बड़ा. काशिफ भाई. Absolutely. आप हो ही नहीं सकता. You know, they were so. There's a मेरी twist ये in the ट्विस्ट tail. ऊपर था हाँ. या ट्विस्ट नीचे था, वो हर चीज की कंटिन्यूटी. ये ट्विस्ट नीचे था, इसको टेढ़ा कर दें. हाँ. तो मैं यूं करके फिर ऐसा टेढ़ा नहीं कर कि देती थी. एक You know, सीन में आपके लाल नाखून है और एक में पीले. नहीं. ऐसा नहीं है. नहीं. Yeah, ये बड़ी बात है because we see so many flaws in. I mean, we watch, like Hassan and I watch 14-15 dramas every week, and they are, a lot of them are really really bad. और उन सब में एक रकीब से होता है. और जिसकी फरियाद, how do you feel about this now? I mean, जिसकी व्यूअरशिप वो नहीं आ रही, जो एक बुरे प्ले की आ रही है, इसकी क्या वजह है? I mean, as an artist, how do you see this? What are people watching? I mean, ये क्या साइकी है? I feel like it's exposure. People जो masses हैं उनको obviously exposure नहीं है. वो जिस तरह हमें देखते हैं, मैंने tattoos करवाए, मैं कुछ भी पहन लेती हूँ. टैटूज इंशा पे भी नजर नहीं आता है बिल्कुल भी. नहीं, उस वक्त ये नहीं था, ये था. अच्छा. हाँ, तो I'm good at hiding them, and then the team was really really good at like covering and everything. But masses, I feel like masses को exposure नहीं है, but I feel and I really really hope, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि potential है. क्योंकि plays तो फिर भी देखे जाते हैं ना, जैसे there are several you know, issue based stories, and they are being followed and people do watch them, and I feel कि अगर हम उन्हें दिखाना शुरू करेंगे तो वो क्यों नहीं देखेंगे. We just have to just one time be responsible and not worry about the money. Be responsible for educating our masses and telling them कि देखो यार, इस तरह ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में ये हो रहा है, इसको डील ऐसे करते हैं. बहन पे जादू या बहन के मियाँ पे जादू नहीं कराना शुरू कर देते कि वो आपका हो जाए. You know, like, come on. What Kashif bhai, whatever his script is, whatever his play is, there's always a message in the end. There's always ये इस play के भी end में there's just सब कुछ ऐसे खुलता है. और जब मैंने end के scenes किए थे, उफ, मेरे अंदर से वो जो एक, पता नहीं, मैं explain नहीं कर सकती. I was just, I could watch the play. I could watch the play when I was finishing. हम लोग जब end के scenes कर रहे थे, and I was like, this is so beautiful, and I am so proud, and I'm so glad that I got to do Insha. क्योंकि हाँ, मुझे ये सिखाना है लोगों को. बहुत प्रोड्यूसर्स ने कहा है, फहद मुस्तफा ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैंने स्कूल नहीं खोला हुआ, मुझे एंटरटेन करना है लोगों को. जिस चीज़ से वो एंटरटेन हो रहे हैं मैं वो चीज़ बनाऊंगा. फेयर इनफ. Suicide is something that we see recurringly in stories these days. हर दूसरा बंदा जो है वो फ्रूट नाइफ लेके अपनी जान ले रहा होता है. Again, I would never broach the subject had you not spoken about it openly in a previous interview with Samina Pirzada. You have attempted suicide several times, and I'm really sorry I have to bring this up. But and I just apologize. But I want to ask you, as somebody who's watching this happen on television over and over again, do you think it's serving any purpose? Is it dangerous? Is it careless? I think. Does it hurt you? Does it give you? I mean, I think जो reason होता है ना suicide का, वो justified नहीं होता. Are you really killing yourself over someone's love? Are you really killing yourself? मतलब आपने जिंदगी को कितना हल्का ले लिया और आपने कहा कि हाँ ये हो जाता है, जहर पी लो, ये हो गया, and just okay, फ्रूट नाइफ ये करने से नहीं होता. मतलब आप पिल्स भी ले लें, आप कार्ड भी लें, ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता. मतलब ये सिर्फ ड्रामे हैं. मतलब you know, it's just, और ये कितनी पुरानी बातें हैं. Like the content I watch, it's such mind-boggling. I watched this new series called Behind Her Eyes. Oh my God.
how can someone even think of that? Going into someone's dreams, going into someone's mind and just hacking and like, you know, like kitni sari aap aur mera dimag, like I am growing as an individual and I know that people don't have as much exposure as me or they're not as educated या जो भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मुझे ये सारा कंटेंट मिलने को देखने को मिल रहा है तो मैं उस पॉइंट तक सोच पा रही हूँ. अगर हमारे यहाँ दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि हल कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं प्रॉब्लम्स के, तो उस चीज को मसाला लगा के चटपटा करने के बजाय अगर सॉल्यूशंस देंगे तो आई थिंक पीपल विल can relate to it much better, you know, and they would benefit from it. Like these people were hiring me for a play जिसमें वो अपने देवर पे काला जादू करती है और वो कबर में बैठ के काला जादू करती है, and I'm just like, no. Where do you get the strength to say no? लोगों को तो I know, मैं पढ़ती हूँ और मुझे, लेकिन फिर यार लोगों को तो पैसे बनाने हैं, बिल्स देने हैं, हाँ, और बड़ा आदमी बनना है. I don't know यार, Where do you get that strength to say no to work, to projects? It's not like, I mean, बिल्कुल अगला project पता नहीं कब लिखेंगी, I know, you know, so it's not like these scripts are coming along all the time. आप कितने script पढ़ते हो महीने में? बहुत सारे, and it's so disappointing. The strength, I think it's not the strength. I think I'm a person that listens to my heart, and I do really spontaneous things. मैं अपना सामान वामान पैक करके पाकिस्तान भी मूव हो जाती हूँ, फिर मैं कहीं और भी मूव हो जाती हूँ, फिर मैं कुछ नया करने को शुरू हो जाती हूँ, and nothing is scary to me. I feel like if I have made it in New York, I can make it literally anywhere. That's a saying, right? If you've made it through your own life, you've kind of, you know, you're prepared for, life has prepared you well. मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने साथ सबसे ज़्यादा honest होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं बहुत परेशान रहती हूँ अगर मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में फंस जाऊँ जो मुझे नहीं करना. मैं करूँगी उसको, बहुत ऑनेस्टी से करूँगी, लेकिन मैं अंदर से बहुत मर जाती हूँ. I am a very very sensitive person. While I was doing Rakib Se, this channel did not want me to do Rakib Se. This channel couldn't believe that Kashif Nazar wanted me, and they tried everything. And we're talking about the channel that's actually airing it these days. Yeah, they tried everything. Define everything. Yeah, everything as in like, why should we cast her? Oh no, she is a lot of issue. Oh no, we need to pay her more. She's asking for more money. Oh no, and I'm just like, और मुझे काशिफ भाई से बात हो रही है, and I'm just like, और मैं पहले भी उनका एक प्ले मना कर चुकी थी, लश्कारा. Okay. तो ये मुझे नहीं छोड़ना था, उसमें जो इंसान था उसके साथ मुझे काम नहीं करना था. I was like no. तो इसमें सिर्फ काशिफ भाई had literally standed by me and said I need her to do this project. पहले वो हो गया सारा agreement, ये वो सब कुछ होके मैं सेट पे आ गई, मैंने पूरा पहला स्पेल करवाया, and काशिफ भाई's team is amazing. I am all praises for काशिफ भाई. And they didn't pay me the way they had said they will pay me. They took out some deductions and something, and it did not make any sense. Tax काटा? Tax नहीं, आपने ये खा लिया, 300 का वो खा लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया. I was like, तो उस वक्त बताना था, because I was doing a project with them उससे पहले भी ना, so 2 projects in a row. So, and then they would cut off the tax when I'm a filer and everything, and it was just very complicated. And then I figured, I was like, okay, मैं अपने पैसे लगा रही हूँ ये project करने के लिए. Does this make sense? ठीक है, it's a big project, and this character is everything that I wanted to do since I've gotten here. Yeah. But मेरी dignity कहाँ है? मैं तो अपनी नजरों में गिर गई हूँ. I told Kashif bhai I'm not doing the play anymore. I told the channel I'm not doing the play anymore, and they were willing to replace me. And Kashif bhai was like, I cannot redo the work she has done.
I don't know what he did. I don't know what he did. They abided to all the terms I set. जैसे उन्होंने मुझे एक बिल बना के भेजा था, मैंने अपने हाथ से वो बिल बना के उन्हें भेजा कि आप मुझे इतने पैसे देंगे तो फिर ये होगा. बर्गर जो खाया तो उसके पैसे वापस करने में. बिल्कुल. Burger and it's everything, like tickets, plane tickets. They wouldn't give me a ticket to go back to Karachi. It was just, I've never worked like this. मतलब हमेशा मैंने काम के लिए ट्रैवल किया है और बहुत अच्छे से हुआ है और इतना मसला कभी नहीं हुआ है. तो आई थिंक कि कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने इसमें मचा दिया था. Do you feel कोविड की वजह से या हालात की वजह से? नहीं. It was just cheapness, plain on cheapness. मतलब वहाँ पे पहले वाले सेट पे बेचारे जो ENG के लड़के होते थे वो रोटी को वो उससे सालन, मतलब वो जो सूप था ना, तेल में लगा के खा रहे थे क्योंकि वो खाना इतना बुरा होता था. और फिर बेचारी मेकअप आर्टिस्ट हमारी, मैं और सानिया आपा, उससे खाना बनवाते थे. वो जाके खाना किचन में बनाती थी, जो सेट का किचन था. हम उस वेजिटेबल्स मंगवाते थे और कहते थे प्लीज वेजिटेबल्स बना दो और फिर हम वो खाना खा लेते थे. रकीब से का सेट? नहीं, the other set. So it started from the other set and came into this, and then I was like, if I'm not getting paid, then there's no reason for me to actually work in something that I'm not getting paid. Because you also have to establish your own worth, right? Exactly. ऐसा नहीं है अगर कोई कहे कि फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं और कहे कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट आप करें तो आप करने को तैयार हो जाएं, मगर अगर आपको साइडलाइन किया जा रहा है कि I don't even live in Lahore. हाँ. I am getting a hotel there. I am doing everything. Why do you think I am that person who you can do this with? हाँ, exactly. Why? You know? And do I want to be that person that you? Yeah, and I was like, no, नहीं. फिर काशिफ भाई ने मुझे भी बहुत समझाने की कोशिश की, मैं नहीं समझी. मैं बहुत अपने असूलों पे बहुत ज़्यादा अड़ जाती हूँ और वहाँ हो जाती हूँ. I was like, no one will give me money. I will get paid from them. They will pay me and then I will come do the play. Then eventually they paid me. They paid you. Yeah, and I went. और कोई मसला ही नहीं हुआ. काशिफ भाई और मैं फुल आराम से हम लोगों ने काम करवाया. He was so supportive. He was so like, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा काम करूँगी क्योंकि ये इंसान मेरे साथ है. You know? और ये बड़ी बात है. ये बहुत बड़ी बात है. मुझे पूरे मीडिया में ऐसा एक भी इंसान आज तक नहीं मिला. He is actually trying to make a difference. Just for the sake of art. He's a visionary. I mean, yes. Absolutely. I was like, Kashif bhai, you're actually trying to make a difference. He's like, huh? And I was like, oh my God. Which is why he is who he is. But Priyal, other than Kashif bhai, who would you consider your friends in the industry? आपने दुश्मन तो इस इंटरव्यू में बहुत से बना लिए हैं माशाल्लाह से. इसके बाद तो अगर आपको काम मिल जाए तो Exactly. Thank you. Thank you. मेरे दोस्त इस इंडस्ट्री में, अनुषा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. अनुषा बासी. वो भी मेरी जैसी बहुत सारी बातें करती है. वो क्योंकि इंटरव्यूज पे आती है और कुछ बोल नहीं सकती. मेरे बहुत डिप्लोमेटिक थी, वो बड़ी प्यारी है ना. मैंने उसका इंटरव्यू देखा एंड आई वाज लाइक, तुम कितनी झूठी हो. कहती है अनुषा के भी क्योंकि पता है मुझे उसका भी समझ में आता है. शी हैज सो मेनी रिलेटिव्स इन द इंडस्ट्री. शी कैन नॉट, and not everyone has to be like me, you know. Not everyone has to be so opinionated and just screw your own future for yourself. Like, not everyone, you know. I hope that you will make a change. I hope so. I really hope so. And that's why I'm here ना, कि ठीक है, इंडस्ट्री में घुसना, इंडस्ट्री में रहना, इंडस्ट्री में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं हूँ ना, मैंने किया. तो अगर आप अपने साथ सच रहेंगे, if you're honest to yourself, if you know what's right, and you just keep working, you just keep your focus in one place and keep working, there is no way anyone can ever stop you. I believe that. I believe that if there were another 5 women like you, or artists like you, not even women, supporting actors के साथ कितना बुरा होता है. If there were 5 people like you who are willing to talk about their problems, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं.
और Yeah. हर बंदा लिहाज मुरब्बत में या काम हाँ, को क्योंकि जाने आप के बैन हो जाते हैं। Exactly. मतलब आई नो आफ्टर दिस एवरीवनस गोना बी पिस्ड एट मी एंड दे आर गोना बी लाइक इसको तो काम ही नहीं देना। कोई बात नहीं ना दे। सेवन स्काई दे देगा आपको काम, क्योंकि सेवन आपने का हम बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग आपने उनकी हैं। बहुत तारीफ की है। हाँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं वो लेकिन उनका भी अभी उनका एक प्रोजेक्ट आया था मुझे और वो स्क्रिप्ट आई वाज लाइक नहीं आपी नो गिव मी समथिंग दैट यू नो दैट ओनली आई कैन डू प्लीज यू नो आई एम रियली लुकिंग फॉर समथिंग टू मुझे मुझे बस फजूल के ड्रामास करना नहीं अच्छा लगता पैसों के लिए। मुझे होता है कि हर चीज़ में एक मैसेज होना चाहिए। मैं यहाँ किसी वजह से आई हूँ और मुझे अगर यूज़ कर लिया जाए तो अच्छी बात होगी, नहीं किया जाए तो कोई बात नहीं, मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ, सही है, you know, बिल्कुल बिल्कुल सही है, it's बिल्कुल fine. सही है। यू डोंट सीम टू बी इन अ रश, यू डोंट सीम टू बी अंडर एनी प्रेशर। आजकल मैं देखती हूँ कि आर्टिस्ट पे बहुत प्रेशर है। एक सोशल मीडिया पर्सोना इस्टेब्लिश करने का प्रेशर है, एक पर्सनल लाइफ को एक बहुत ही गुलदस्ते में सजा के आगे दिखाने का बहुत प्रेशर है, लव लाइफ को एक सजा के दिखाने का बहुत प्रेशर है। Are you doing the lawn campaigns? Are you getting the sponsorships? Are you getting the ads? Are you getting all of that? It's so... How do you keep yourself clear of all that clutter? I just don't answer my phone. I just don't reply to the texts. But there's the trolling online. I mean, Haan. you love to dance, and I've seen you such a beautiful dancer. Thank you. But is there room for a beautiful dancer in our society? बहुत मुश्किलों से बहुत घुसा के अपनी जगह बनानी पड़ती है एंड आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड who takes care of my Instagram. I am very, very bad at technology. That's not Anusha Basi, although we were talking about It's people not your Anusha. friends. So It's not Anusha, वरना मेरा Instagram बहुत diplomatic और बहुत अच्छा होता, बहुत nice We होता। found कि बहुत nice होता। हाँ, बहुत nice होता। You know, वो हर चीज़ इतने प्यार से कहती है और करती है, मैं उसको तो बहुत... ये कौन है जो आपका Instagram handle कर रहे हैं? It's my best friend. She lives in America. Okay. She handles my Instagram and she अगर किसी को वो जवाब भी देती है तो वो ही देती है। मैं तो देखती भी नहीं हूँ। अच्छा। बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने देख लिया हो या मैंने किसी को बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने किसी को जवाब दिया हो, वरना तो मेरे लिए Instagram एग्जिस्ट ही नहीं करता है until I want to post a dance video. Yeah, that's what I just want to share with the world. You know, I love that. I love dancing and I feel कि मुझे भी बहुत मजा आता है कोई अगर मैं किसी अच्छे डांसर को देखूं वो joy जो मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि you know if I can spread that why not। और जिन्होंने बातें बनानी है कि अल्लाह देखो क्या वाहियात, या अल्लाह देखो इसको कितनी attention seeking है ये, ओ अल्लाह देखो ये सब करेगी, ठीक है यार करूँगी मैं सब ठीक है। I like it, you know. I have very few Instagram followers on Instagram and I'm not active about because it. You're not everybody's like ideal प्यारी बेटी बहू ना। मैं बिल्कुल भी वो गोरी सी प्यारी सी बच्ची नहीं हूँ and I like that. I like that क्योंकि मैं वो एक आपका जो typical face होता है TV का, I'm not that and I can be every character and look different in every character. I promise you, I can do that to my face. And I think Pakistan should have a person like that, right? Absolutely. Coming back to Insha. Okay. Insha is the character that you related to and you love, and you know, and we all love Insha. The fact that she's again an emancipated character without being a bitch, and she's not a bichari, and she's seeing her parents' relationship and the lack of intimacy and the lack of emotion, and she's in a relationship with this boy who we think is using her and is manipulating her, and there I've left the sentence open for you to comment on Abdul now. Abdul, first of all, I'd like to say, उसका पहला play है ये। हाँ, और बड़ा अच्छा उसने काम किया। उसने क्या काम किया है? हाँ। हम लोग जब कर रहे होते थे सीन्स, अल्लाह मैं तो उसकी पोजीशन में होना भी नहीं चाहती थी। मैं कहती थी यार ये तो तुम्हारा पहला प्ले है, तुम्हें जो है ना मतलब जैसे ऑस्कर लेवल का एक प्ले तुम्हें पाकिस्तान में मिल गया है पहला। हाँ। सोचो तुम और तुम्हें खड़ा कर दिया है बिल्कुल शार्क्स के बीच में कि ये लो करो अब परफॉर्म नाचो। तो
इतनी मुश्किल लाइंस उस बेचारे की, इतनी मुश्किल लाइंस, और वो सारी मेमोराइज करके लाइंस यूं बोलता था. He was better than a lot of actors right now that are doing really good. Better than a lot of actors. And such a nice guy. Oh my God. वो मुझे बॉस कहता है. Sweet. हाँ. मतलब he's Suhail Ahmed's son. Yeah. He doesn't need to. No. We can just be friends. Yeah. But he gives me, he's like, यार, when we used to do scenes, और मेरी जिसमें लाइनें ज़्यादा होती थी तो वो मुझे देखते देखते ना यूं हो जाता था, and he would just, and then he would come out of it and be like, oh my God, Faryal, like Faryal, oh my God, you know. And वो जो हमारा एक बना, he would listen to what I would have to like, you know, correct. And काशिफ भाई ने obviously एक एक चीज़, उसका ऊपर देखना, उसका नीचे देखना, पीछे होना, आगे होना, इस ये लाइन कैसे बोलते हैं, वो लाइन. No, Abdul is a character you really connect to. You connect with him. और वो जो हमारा एक ऑटोमेटिक, अच्छा अब्दुल और इंशा का इतना ज़्यादा स्क्रिप्ट वाइज इतना ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप नहीं था, जो अच्छा. मुझे जब मैंने पढ़ा तो मुझे इतना नहीं लगा. लेकिन क्योंकि इंशा इतनी लेड बैक एंड लाइक नीचे है और कैजुअल है, तो वो अब्दुल का एक, क्योंकि वो एक सेट हो गया. एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दोस सीन्स, काशिफ भाई वाज लाइक, I like this. It's coming out very, very natural, and it's very like casual. Yeah. You know, it's very flowing. casual. Yeah. It's flowing. और वो होते 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 हमारे सीन्स इतने मजे के होने शुरू हो गए कि वो बिरयानी खाते हुए जो मैंने ये किया था, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने ये किया था. वो बस निकल गया क्योंकि मेरी उससे इतनी हो गई थी. अच्छी हो गई. हाँ. तो वो जब आपको भी स्पेस दी जाती है और आपको बोला जाता है कि यार तुम तो बहुत बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, तो आपको होता है कि हाँ मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, हाँ मैं और करके दिखाती हूँ तुम्हें, यू नो. और फिर मैंने उसको बोला, यार तुम तो पहले प्ले के लिए बहुत अच्छा कर रही हो, ये तो बहुत आला काम हो रहा है. सो ही वुड ऑल्सो, it was very difficult for both of us. And we have a lot of scenes, very long scenes. But they happened at one point. जो अब्दुल के घर के सीन्स हैं जिसपे इतना स्कैंडलाइज कर दिया है मेरे कैरेक्टर को, माय गॉड. इंशा उसके घर क्यों जाती है, इंशा उसके घर क्यों जाती है, क्यों ना जाए. क्या कभी भी कोई किसी को डेट कराता है वो उनके घर नहीं जाता? एक रियलिस्टिक सा सवाल है, अपने आप से पूछें आप. मतलब यू नो, दिस इज फॉर द व्यूअर्स. मिल बैठ के दुआ वगैरह जरूरी होती है. एग्जैक्टली, एनीथिंग, यू नो, एनीथिंग. आप अपने आप से पूछें, क्या आप कभी भी, मैं कैमरे में देख के बोल, क्या आप कभी भी किसी से अकेले में नहीं मिले? How? Please think about the things you say. पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में भी लाहौर यूनिवर्सिटी ने एक्सपेल कर दिया है एक लड़का लड़की को. So these are the people you're talking to. वैसे हमारे व्यूअर्स जरा फर्क हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे, हाँ मतलब यू नो, अगर उनको मैं नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको मैं समझ में आती हूँ एटलीस्ट उनके लिए यू नो, you're right. कि ये एक बहुत रेगुलर नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर उसका घर है तो वहाँ जाके क्यों ना खाना खाया जाए. बातें ही हो रही हैं ना, खाना खा रहे हैं वो लोग, बातें कर रहे हैं, तो I don't आपको think people have really disapproved that, have they? Yeah, I saw some things and I was like, यार इन लोगों ने मुझे छोड़ के मेरे कैरेक्टर इसको स्कैंडल. मैं तो पब्लिकली कहना चाहूंगी व्यूअर्स को कि कैरेक्टर को कैरेक्टर रहने दें, उसमें वो खराबियां भी हो सकती हैं. गंदा ना करें. नहीं, गंदा ना वो करें. गंदी होती तो आपको पता होता कि वो How गंदी was है. your equation with everybody else on the set? I mean, अब्दुल तो हो गया, उसका तो पहला ड्रामा. अब्दुल के साथ बहुत मजा आया. हदीका कियानी का पहला ड्रामा, her debut. उनसे तो मुझे जैसे इश्क होता है ना, हमें इश्क हो गया एक दूसरे से, पता नहीं क्यों और कैसे. वो भी बिंदास है ना, इसलिए. अरे एंड सो हार्ड वर्किंग, सो फोकस्ड, एंड जस्ट वो डिसिप्लिन मैंने बहुत कम लोगों में यहाँ देखा है. एंड दैट डिसिप्लिन आई सॉ इन हर. मतलब सीन से पहले, क्योंकि नुमान भाई की आदत है, चाहे कुछ भी सीन हो, कितना ड्रामेटिक हो, कितना रोना हो, जिसकी भी जो भी लाइंस हो, उन्होंने कोई क्रैक करना होता है. जोक या ओके, क्रैक्स अ जोक, ही इज ऑलवेज जोकिंग, हंसते हंसते हंसते. अब वो इतने बड़े एक्टर हैं, वो हाँ ठीक है एक स्नैप पे एक्शन होगा और वो सीधे हो जाएंगे और वो अपनी लाइन बोल देंगे. मुझ जैसा बंदा जो याद कर करके बोल रहा है,
मैं क्या करूंगी? तो और इवन हदीका मैम, शी पहले वो भी कंफ्यूज हो जाती थी, उनको याद नहीं रहता था, तो हम दोनों जब सीन होने वाला होता था हम नीचे देखते रहते थे, उनको देखते ही नहीं थे। नहीं। I said it to Numan bhai once. I was like, Numan bhai, you're an amazing actor. I am not. Please let me do my job. I cannot lose focus right now. मेरे सोलो के बात करेंगे. Let's do this after my solo. So he was like, अच्छा अच्छा ठीक, and he would get it that okay. लेकिन इनका सानिया आप है, नुमान भाई हाँ चिलिंग हो रही है, हंस रहे हैं और एकदम से कैरेक्टर and you're like वो टक्कर के है ना आपस में. But your contemporary would be Ikra, right? Yeah, Ikra. इंशा जो है वो मीरा की तो काफी उसकी लगती है. हाँ, मेरा और इकरा का इतना ज़्यादा हम लोगों ने इंटरेक्शन नहीं अभी भी नहीं है. It was very professional. We worked together. She was very nice to me. I was very nice to her, and that was about it. But I developed a real connection with Hadika Kyani. I call her Mimi, and obviously Sania Abba के साथ तो पिछले सेट से connection बन गया था. I call her Bobo. And उनके साथ जब सीन होता है ना, I mean it. I mean everything I say to her, and you will see it in my eyes. Every time, even उनके solos हो रहे होते थे और मैं रोती थी. जब हम सीन कर रहे होते तो मैं सिर्फ उन्हें cues दे रही होती थी, मैं उसमें भी रोती थी. और वो कहती थी तुम क्यों रोए जा रही हो, तुम नहीं करो, मुझे देख के तुम्हें टेंशन होती है. मैंने कहा ये खुद हो रहा है, छोड़ दे, डोंट वरी अबाउट मी, जस्ट डू योर थिंग, ये खुद हो रहा है, लेट इट बी. सो कंटिन्यूटी वाइज इस प्ले में आपको उस तरह कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मेरे इस आंख से आंसू गया था और यहाँ से उनका सोलो बन रहा है और सिर्फ मेरी ये आंख आ रही है, तो इस आंख से आपको आंसू वो मिलेगा दोबारा मिलेगा वही. Yes, वही exactly. That's amazing. Wrapping up on a personal note and talking about love and Maqsood Saab. Yeah. So there are different opinions about Maqsood Saab. कुछ लोग कहते हैं कि जी there are these women who are like fantasizing about Maqsood Saab और उनकी इश्क की दास्तान है सकीना के साथ, और 20 साल पहले जो हुआ था उससे पहले चलता रहा, वो 20 साल झाड़ू देती रही, घर को साफ रखा. And then there's Hajra who's like, I worship the ground that this man walks on. And there's Insha जो कि मैं इंशा को देखती हूँ, and she's a bit resentful of the fact कि जो इश्क और जो इक्वेशन मकसूद साहब की हाजरा के साथ थी, सकीना के साथ थी, वो अपनी उसकी माँ के साथ नहीं है. और वो इस इक्वेशन ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं है. वो कहते हैं ना कि ऐसे कौन रोता है प्यार पढ़ के, वो जिसको नहीं मिला हो. तो वो भी ढूंढ रही है. I mean, she was also, I think it was the last, अभी जो क्या था या तो उससे पहले जो एपिसोड था, वो कहती हैं कि इतनी जोर से तो कभी नहीं चिल्लाए मुझ पे, सकीना ने कुछ किया होगा. पैशन निकलता है ना सकीना के साथ. Exactly. तो मैंने यही, इंशा कहती है कि उनको आपसे इतना लगाव ही कहाँ, कि आपसे इतनी इमोशनल, and then she walks away. So Insha, we are getting to know. Faryal, we're getting to know. What is your take on love? And उस किस्म का उस लेवल का love. Should I go into newly married? Now that you're newly married. Oh my God. No. Okay, so उस तरह का लव मुझे ऐसा लगता है, obviously पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, देखने में बहुत मज़ा आता है. मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना मैंने देखा रियल लाइफ में. और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम एज इंडिविजुअल्स व्हेन वी मीट समवन, हम वो चीज़ें देखते हैं उनके अंदर जो हमें देखनी होती हैं, एंड वी बिल्ड एन इमेज दैट वी वांट टू सी, and that image keeps us going back to that person and investing more and more and more. And जिन लोगों की शादियां नहीं होती और वो सिर्फ एक लव स्टोरीज रह जाती हैं, तो वो आई थिंक वो क्योंकि वो चीज़ छूट जाती है ना, तो कोई चीज़ छूट जाती है तो उसका तो और दुख होता है. वो फिर कुछ और इमेज बन जाता है आपके दिमाग में कि वो जो था ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब मुझे नहीं लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्त जो आपसे प्यार करते हैं वो बहुत
बहुत अलग, बहुत जेन्युइन प्यार होता कितनी है, अच्छी बात की है, I believe that too. बहुत जेन्युइन Yeah. प्यार होता है। मतलब मेरे लिए मेरे अब्बा जितना मुझसे प्यार करते हैं, या मेरी माँ, या मेरा भाई, लेकिन मेरे लिए दोस्ती ज्यादा एक वो प्यार डिफाइन करती है इस रोमांटिक रिलेशनशिप से ज्यादा, क्योंकि इफ यू आर देयर फॉर मी व्हेन आई नीड यू, आर यू Yeah. देयर फॉर मी? Yeah. इफ यू आर देयर, yes, then you love me. That's what love is for me, you know. Just to secure me. That's for me, that's love. That's love. Security. So हर एक का अपना अपना होता है, डेफिनेशन होती है प्यार की। मेरे लिए थोड़ी सी अनरोमांटिक है। Yeah, no, that's fair enough. Absolutely. ये कॉन्वर्सेशन तो नहीं खत्म होती अगर हमें कहा ना जाता कि लाइट जा रही है और रील खत्म हो रही है और बैटरी खत्म हो रही है। अनफॉर्चुनेटली बैटरी और लाइट जा रही है, लेकिन हमारी बैटरी और लाइट नहीं जा रही। I think you and I need to continue this conversation over dinner or coffee. We do. Because Faryal, I say this very genuinely that I wish to see more artists like you. Thank और you. मैं बिल्कुल I'm not saying more women like you or more men like you, more artists like you who are sincere to their craft, Thank who you. are very focused on what उन्होंने क्या करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किसके साथ दोस्ती करनी, किससे नहीं करनी, और क्या मैसेज देना है अपने व्यूअर को, और क्या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत बड़ी बात है। I'm delighted that you agreed to this interview. Thank you. And you took time out. Of course. And of course, हम इतना enjoy कर रहे हैं रकीब से. It's just like I say in every review, it's poetic. It's going to get so much better. Just watch. There you Just go, keep guys. It's going to watching. get so much better. Oof, हम yes. कुछ reveal नहीं किया, which we didn't want you to either. हाँ. वो बहुत ज्यादा होती, मगर हाँ. ये बात हम भी जानते हैं कि स्क्रिप्ट में फ्लॉ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। स्क्रिप्ट में फ्लॉ नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। Faryal, thank you so much for your Thank time. you, It was Amna. Thank absolutely you. delightful. Thank you for having me. This was amazing. बहुत मजा आया मुझे। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया मुझे।